Yeah, Hello, yeah, Khansha. yeah. So last class, Cory is not there. So I think there were some points that I guess I missed. बोलो बोलो which point you missed. I will explain that. Khansha, go ahead. Which point you have missed? Khansha, are you there? ठीक seems the Khansha has dropped out. So हाँ जी, बाकी किसी को कोई query है तो बताइए. Morning. Morning, Deepak. Deepak, is there any question? Morning. Yes. Morning. Actually, on for the weekdays classes, will the recording will not be available? Is it so? Because what we have discussed earlier on that point, that whatever KPMG sessions have been done. मैं चेक कर लेता हूँ. नहीं हुआ इस वीकडे का, नहीं आया अभी उसमें. मैं चेक कर लेता हूँ. चेक करके बताता हूँ. मैंने बोला था. सो आया नहीं है तो मैं चेक करता हूँ. वो अपलोड का बाकी है. अपलोड इशू है कि अपलोड नहीं हुआ अभी या अभी और कुछ इशू. No. Actually, this will the confusion what Damni has ठीक mentioned है. on in the text. Leave that with me. I will come back to you. Okay, because she has some thoughts that अरे Deepak, leave that with weekdays. me. I will come back to you. Don't worry. I have understood your point. Leave that with me. I will come back to you. So this question is still on with me. I will come back to you. Next. और बोलो. Anything else? Anything else, guys? Akansha, in case you're back, so कोई point आप पूछ रहे थे जो miss हुआ. So if you're there, I can explain that. अगर आप मुझे बता दो which point you have missed. Akansha, you joined? Yes, sir. So one thing. हाँ, sorry. बोलो. I think you got dropped off. So which point you have missed and you want me to explain? Akansha? One second. Just report. For depreciation, I think I have missed. Sorry? Depreciation. Depreciation. Okay. Anything else? No, sir. ठीक है. Depreciation अभी तक मैंने कराया ही नहीं है. So you have not missed anything technically then. ठीक है. So हम लोग फिर first 3 पैरास करें अभी तक. ठीक है. So I will start from this 4th line or 4th para. So depreciation हम आज कवर करेंगे. ठीक है. ठीक है कांशा? Yes, sir. चलिए. So in case no other question from anyone. ठीक है. So the next is annual operating cost after commercialization is expected to be 10 crores. Now, the difference between this cost, and this cost. Okay, so ये जो first वाला cost है, जो first पैरा में आपके cost given है, this and this.
ये आपके केपेक्स है, और ये जो 10 करोड़ गिवन है आपके 4th पैरा में, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, which is this is a recurring annual or monthly whatever periodicity is given, वो एक्सपेंस है। ठीक है, so is this clear to everyone? Any questions on this in terms of how this 10 crore are different from the number of from the cost given in the first para? Any question on that? रिकरिंग मीन सर मतलब इसमें ये जो एक्सपेंस है वो होना ही होना है। होना ही होना है is one, plus वो हर साल होगा। So this 10 crore is like the expense that you have to pay every year, incur every year. So this will include salaries, electricity, and so on. Okay. आप एक मशीन खरीदते हो मनमीत, when you purchase a machine, when you purchase a machine, the cost of the machine is 100 rupees. So that is your capex. वो वन टाइम आप खर्च करते हो। अब वो मशीन को चलाने में आपको हर महीने फ्यूल यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना पड़ेगा, you need labor to run that machine. तो वो तो आप हर मंथ पे करते हो ना, तो वो आपका ऑपरेटिंग रेकरिंग एक्सपेंस हो जाता है। वही सर ऊपर वाला केपेक्स में इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो 1 ईयर से ज्यादा हमको बेनिफिट मिल रहा है, और नीचे वाला जो है वो मंथली बेसिस पे खर्च होगा हमारा। मंथली और ईयरली व्हाटएवर इज द पीरियोडिसिटी। ओके। How is this computed? सिखा रहा हूँ, Is it we'll come to that. So before I go to in terms of how we computed this number, ठीक है, is everybody clear how this is different from the numbers which are given in the first para? ठीक है, so what we did, we understood, we had couple of meetings with the client or their respective operations heads to understand when this will go live, how this will be operated. Because as I told you, we do not have any base numbers, correct? Historically, अगर running company होता, so probably again this would have been very easy for us. We would have looked at some operating costs of the previous years, and that gives us a sense in terms of what's the operating cost. तो ऐसा मुझे दोबारा compute करने की जरूरत नहीं पड़ती। But given मेरे पास कोई पुराने numbers नहीं है, ये सब हमें खुद calculate करना पड़ेगा, ठीक है? So, but before we do that, in terms of understanding how do they operate that toll, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था, ठीक है? So what we understood from them, so what I understood from them, so this was 8 by 8 lane toll. So when you say 8 by 8 means so ठीक है, so इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है? For this, the cars will be going into this direction and this is reverse direction, ठीक है? एंड अगर यहाँ पे आपके 8 लेन है, तो जितने भी लेन है, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो आप एंटर करते हैं टोल में, यहाँ पे आपके so if it's an 8 lane, they will have 9 booths. जितने भी लेन्स होते हैं उससे +1 बूथ रखते हैं हम। यहाँ तक कोई डाउट?
Hello, am I audible now? Hello. Yes. Okay. Yes. Yes. So and for per booth, what they explain to us, because this works 24/7. So for per booth, they typically keep 3 FTs. So which means 3 employees. ठीक है, शिफ्ट में काम करते हैं ये लोग. ठीक है. So we're technically looking at 24 hours. So 80 hours के अगर लेबर लॉज हैं, ठीक है, so उस हिसाब से आप 3 लोग पर बूथ देख रहे हो. So which means I'm typically looking at 3 into 9, 27. लेकिन चेंज हो जाएगा. सो डिपेंडिंग अपॉन आपके लेबर लॉज कितना अलाउ करते हैं शिफ्ट के एक्सटेंशन, उसके बेसिस पर ये एडजस्ट हो जाएगा. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन आइडिया कि हाउ डज इट वर्क. यहाँ तक कोई डाउट है 27 कैसे आया? एंड दिस 27 विल गेट मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज उस साइड भी होगा ये सेम चीज. यहाँ पे भी सेम बूथ होंगे. In a day, 9 hours a day. Sorry, 9 hours a day means 3 into 9 you have evaluated, na? नहीं, 9 hours नहीं लिया ना मैंने, 8 hours लिया ना. तो अगर 24 hours हैं दिन में और एक बूथ पे 3 लोग लगेंगे तो 8 घंटे की शिफ्ट हुई ना. नहीं, how this 27 came up? Because एक बूथ पे 3 लोग चाहिए आपको. Uh-huh. 9 बूथ है. Okay, 9 booths are there. Okay. 8 lanes पर साइड है. Not heard that actually. कोई बात नहीं, 8 lanes पर साइड है. सो जितने लेन्स होते हैं उससे +1 रखते हैं वो लोग. ठीक है. सो 54 तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए. दिस इज वेयर इट ब्रिंग्स 54. या आकांक्षा, The concept of 8 plus 1 lane, or is it 8 lanes plus 9 booths? I'm getting confused. श्रेय आकांक्षा आपका आवाज न क्लियर नहीं. कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन? Hello. या आकांक्षा, गो अहेड. So I was asking, in this, like there are 8 lanes. So is it like 8 lanes plus 1 booth? That is 9 booths over here. No. So what they do, sir, if you have 8 lanes, जितनी lanes होंगी उस पे +1 करके is the number of booth. So because you have 8 lanes, so number of booths is 9. That is what you need to understand. और 9 booth कैसे आया वो लॉजिक जब हमने उनसे पूछा, so हमें बताया गया इस जितनी भी लेन होती है उससे +1 रखा जाता है. देखो लेन्स का मतलब आई डोंट नो, अगर आप ड्राइव नहीं करते तो आपको डिफिकल्ट होगा समझने में. लेन्स मींस विड्थ ऑफ द टोल होती है. तो लेन का मतलब है कि यहाँ पे इस लेन में एक व्हीकल चलेगा, इस लेन में एक व्हीकल चलेगा. तो अगर 8 लेन्स हैं तो 8 बूथ तो करने ही पड़ेंगे ना, बिकॉज उतने व्हीकल्स आसानी से फ्रीली मूव कर पाएंगे. Yes, sir. ठीक है. So 54. And +1 is to take care of some backup or whatever कुछ हो. So what we were given to understand, there was some that one booth is always reserved for some emergency VIP movement or some special armed movements. That's what we were told, because they will not stand in a queue. ठीक है. So अगर कोई एम्बुलेंस को क्रॉस करना है, कुछ करना, तो एक बूथ को रिजर्व किया जाता है फॉर दी स्पेशल सर्विसेज. अगेन डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम एन इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव. इंडिया में ऐसे सब नहीं होता है. ये एम्बुलेंस के लिए अलग से कोई बूथ बनाया जाता है. यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे एम्बुलेंस विल स्टैंड इन द क्यू एंड वेट फॉर ट्रैफिक टू give a probably corridor to ambulance. But as I told you, this is looking from a more of a developed market perspective. But 54 कैसे calculate हुआ वो समझ नहीं आ रहा. 54
आपको 9 समझ आया पहले? Yes, sir. तो मैं यहाँ से 9. स्टार्टिंग करता हूँ। लेन्स कितनी है? 8 पर साइड, करेक्ट? तो बूथ कितने हो गए? दिस प्लस दिस पर साइड, सो टोटल बूथ कितने हो गए? दिस इंटू 2 हो गया, क्योंकि बोथ साइड की बात है आकांक्षा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आवर्स इन अ डे कितने होते हैं? 24 आवर्स। लेबर लॉज 8 आवर्स। ये लेबर लॉ समझते हो? तो कुछ कंट्री में लॉ डिफाइन करता है कि अगर आप किसी को हायर करते हो तो आप मैक्सिमम कितने घंटे उनसे काम करा सकते हो। तो ये काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इंडिया में भी है, बट इट डजंट गेट एम्प्लॉयड टू स्ट्रिक्टली। सो बट अगर 8 घंटे के बाद अगर आपको उससे काम कराना, तो आपको एक्स्ट्रा पे विद सम एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन, वो सब चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट आकांक्षा? No, sir. सो यानी पर बूथ आपको कितने लोग चाहिए? जो आपको लेबर या रिसोर्सेज चाहिए। I'm not able to recollect the name. So what they told me, एक टेक्निकल नेम बताया था उन्होंने। जो ये लोग टोल बूथ पे बैठते हैं, उनको कुछ नाम, कुछ डेजिग्नेशन है, कुछ टाइटल से कॉल करते हैं। वो मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो आपको बताता हूँ। मैं अभी के लिए लेबर लिख रहा हूँ, बट दे आर नॉट कॉल्ड एज लेबर। कुछ तो टेक्निकल उनके इंडस्ट्री में एक वर्ड उन्होंने मुझे बताया था। ठीक है, बट अभी के लेबर, सो ये 3 लेबर हो गए, सॉरी 3 लेबर पर बूथ हो गया। कांशा, Yes, sir. सो टोटल लेबर कितनी हो गई आपकी? दिस इंटू दिस, Okay. सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया। टोटल 18 बूथ है और 3 रिसोर्सेज पर बूथ चाहिए। हाँ ठीक है। तो इतने लोगों को मुझे हायर करना पड़ेगा, बिकॉज ये 24/7 चलने वाला है, करेक्ट? तो मुझे इतने लोग रखने पड़ेंगे एटलीस्ट टू मैनेज दीज बूथ्स। विदाउट किसी को भी यहाँ तक। सर हाँ जी, सर ये 8 लेन बूथ है, तो सर स्टार्टिंग और एंड पे दोनों तरफ बूथ होंगे ना? करेक्ट। तभी तो इंटू 2 किया ना ये। सर ये 9 लेफ्ट बूथ और वन राइट साइड। दोनों तरफ होंगे ना? अरे तभी तो 9 बूथ वन साइड है, तो इंटू 2 करके 18 कर दिया ना। टोटल बूथ 18 हो गया ना। मतलब एक डायरेक्शन में 8 लेन है कि पूरे हाईवे पे 8 लेन है सर? एक साइड पे 8 लेन है यार। तो सर एक तरफ तो फिर 16 हो जाएंगे ना, फिर 18 बूथ हो जाएंगे ना? स्टार्टिंग पे 18 हो जाएंगे, दूसरे एंड पे भी 18 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे श्रीकांत, जरा मुझे बताना। 18 कैसे निकाला आपने? क्या आपने ये एक डायरेक्शन जैसे 2 पिंक लाइन जो आपने ड्रॉ की हैं, इसके इस तरफ भी तो 18 होंगे, कैसे 9 होंगे होंगे। 9 होंगे ना पर साइड। हाँ पर साइड, तो इस साइड में भी जैसे आपने लेफ्ट में बनाया है, राइट में भी तो 9 बनाएंगे इधर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18 इधर हो जाएंगे और एंड पॉइंट पे भी इधर हो जाएंगे सर। अबे एंड पॉइंट पे बूथ होता है क्या टोल के? तो मैंने तो देखा है सर। क्या क्या करेगा वो बूथ, आप मुझे बताओ। आपने टोल कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है?
यहाँ पे आपने टोल कलेक्ट कर लिया, आपने एंटर किया, ये व्हीकल ने टोल पे कर दिया, अभी आ रहा है यहाँ पे एंड पे क्या करूंगा मैं, बूथ उससे क्या करना है मुझे? तो खैर जो इस साइड से सर पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर तो करो, यहाँ इंडियन पहले क्वेश्चन का आंसर करो, फिर क्वेश्चन पूछो। अगर यहाँ पे आपकी कार या व्हीकल एंटर करता है टोल के एंट्री पॉइंट पे और आपने टोल पे कर दिया और आपको एंट्री मिल गई, आप चल रहे हो, आपने टोल के एंड में पहुंच गए, एंड पे बूथ क्यों चाहिए? क्या करेगा वो बूथ? आपने क्या देखा है नहीं देखा उसको छोड़ दो, आप इस क्वेश्चन का पहले आंसर करो। आपके हिसाब से अगर आप इसके ओनर होते, आप बूथ रखते, हाँ या ना, और रखते तो क्यों रखते, वो मुझे बता, फिर आपके मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो आपको पूछना चाह रहे हो। सर मैं तो नहीं रखता, बट मैंने देखा है। अच्छा, आपने रखा, आपके हिसाब से होने की जरूरत है, लॉजिक है कोई वहां पे बूथ रखने का? सर, श्रीकांत, बी- डू यू सी एनी नीड? बीच से कोई एंटर, क्या बीच से कोई एंटर कर गया तो उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? अरे बीच में कोई एंटर कर ही नहीं सकता ना, टोल्स जो होते हैं ऐसे थोड़ा होते हैं, टोल्स में एक ही एंट्री पॉइंट होता है श्रीकांत, यू कांट हैव 20 एंट्री पॉइंट। तो बताए सर एंड पॉइंट ही रहता है उसका रुक जा फजलूर, श्रीकांत मैंने भी देखा है। श्रीकांत फजलूर रुक जा, अरे देखा है और लॉजिक में दो अलग अलग चीजें, मैं अभी देखा नहीं पूछ रहा ना फजलूर, सुनो क्वेश्चन को ध्यान से। मैं पूछ रहा हूँ आपको जरूरत लग रही है तो मुझे बताओ, इससे जरूरत है और इसलिए। अगर एंट्री पॉइंट एक है तो नहीं जरूरत है, बट अगर बीच में कोई एंट्री पॉइंट मिल जाता है तो उसका जरूरत पड़ेगी फिर। ठीक, एंट्री पॉइंट नहीं है कोई, एक ही एंट्री पॉइंट है, अब जरूरत है हाँ या ना? नहीं सर, नहीं है, फिर तो नहीं है। ठीक, ठीक, अब फजलूर, हाँ तुम्हें लगता है फजलूर जरूरत है? वही सेम रीजन है सर। एंट्री पॉइंट नहीं है कोई, एक ही एंट्री पॉइंट है यार, ये कोई तो छोटा फिर रोड थोड़ा। तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एंड एक ही पॉइंट में एंट्री जो पॉइंट रहता है है, वो एक ही एग्जिट पॉइंट है, देयर इज नो एंट्री, देयर इज नो एग्जिट अदर देन दीस व्हाट इज मेंशन ऑन द स्क्रीन, वन एंट्री वन एग्जिट। अगर कोई कार यहाँ से एंटर करी है सो उसको यहीं से एग्जिट करना पड़ेगा और कहीं से एग्जिट नहीं कर सकती। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर। और सर अनलेस वन अनलेस लेन कोई में अनलेस कोई इमरजेंसी हो जाती है और उसको एयरलिफ्ट किया जाता है, वो सब चीजें वहां पे बहुत कॉमन होती हैं, तो वो सब चीजों को मैं नहीं लेके आ रहा, ठीक है? सो उसको छोड़ दो, ठीक है? उसके अलावा अगर इन नॉर्मल सिनेरियो की कार एंट्री से अगर यहाँ से एंटर करिए लेफ्ट एंट्री से, तो एक ही एग्जिट है, अदर दोनों इमरजेंसी सिचुएशंस। बीच Can you please से कोई elaborate बीच से what कोई एंट्री नहीं endpoint? होगा। फजलूर गो अहेड, दीपक एक सेकंड, हाँ फजलूर। बीच से कोई एंट्री नहीं होगा, बीच रोड से कोई सर्विस रोड कोई ये, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर एंड पॉइंट में। ठीक है, सो फजलूर एंड और श्रीकांत सर क्लियर है? हाँ बोलो। वन लेन में गोज एंड कम पॉइंट दोनों इन्वॉल्व होगा या फिर ओनली गोज होगा या फिर कम? क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। वन लेन में अप एंड डाउन दोनों, यानी कि आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, वो उस टाइप का इंक्लूड होगा या फिर जा ही सकते हैं या फिर ओनली आ ही सकते हैं तो जो वन ऊपर वाली लेन में? लेन है, मैं इसको ए कर देता हूँ और इसको बी कर देता हूँ। ए लेन में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और बी में आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, जो एरोस बनाए वो डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। Does this answer your question? यस सर। श्रीकांत और कुछ है तुम्हारा? नहीं सर, नो सर। दीपक, दीपक go ahead. What's the endpoint you want to means? I'm not able to visualize the endpoint. What's the endpoint you all are discussing? नहीं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग पे टोल मैंने बूथ रखा है ना, ये बोल रहे हैं जो टोल का एंड है जहाँ पे वो खत्म हो रहा है वहां पे भी बूथ रखो या बूथ होना चाहिए सेम लेन में। जैसे ए लेन है, ए लेन में जो मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ,
So look at the red color now. तो यहाँ पे एक लेन के स्टार्टिंग में हमने बूथ रखे हैं दीपक, यू आर विद मी टिल दिस पॉइंट? Yes. Please. ठीक है, सो व्हाट फजलूर और श्रीकांत वाज सेइंग, अब जैसे व्हीकल विल एंटर थ्रू दिस टोल एंड विल ट्रैवल और ये इस टोल के एंड पे पहुंच गया, तो दे आर सेइंग यहाँ पे भी बूथ होने चाहिए, ये डिस्कस कर रहे हैं। But it all depends upon the length of the route. कहीं मिडिल में कोई और लेन तो नहीं है from which they can enter to that expressway. There are a number of combinations required for that. There is no entry, there is no exit other than emergency. No, then it is not required. It should not be there. वही डिस्कस से तो फिर तो कॉस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। करेक्ट, नहीं कॉस्ट, आई थिंक कॉस्ट एक चीज है, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट कॉस्ट इज डिफरेंट, बट ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन होगा ना, मैंने यहाँ पे अगर बूथ लगा दिए तो। नहीं, why somebody will pay twice a toll? करेक्ट, और वो उससे ज्यादा जो है मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है वो चीज। हाँ, तो जैसे देखो क्या होता है ना, हर कंट्री में कुछ चीजें प्रायोरिटी होती हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इन दिस स्पेशली इनटू दिस सेगमेंट, आपकी कार की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडिया में कार की स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कार की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। सो यू विल बी गेट, so there will be penalty imposed if you drive the car lower than a particular speed in a particular lane. So you have to drive at a speed to ensure that traffic remains at the same move. So because अभी भी हम बहुत सारी और भी चीजें डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको देखोगे वहां पे वो चीजें इसलिए नहीं करी जाएंगी क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। सो आई डोंट सी एनी नीड, एंड दैट्स व्हाट नाउ फजलूर और श्रीकांत ने भी एग्री किया कि यहाँ पे उस बूथ की जरूरत नहीं है अगर कोई और एंट्री पॉइंट नहीं है। So can we close that piece now? Any questions, any doubt, anybody? There is no booths on the other side of the lane. Both at the entry points you will have booths. So 9 booths per lane, which is this at entry, and this is यहाँ पे जो होंगे. Hence makes total 18 booths of the total toll. कोई डाउट यहाँ तक? और ये 54 के कंप्यूटेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। No, not on this. I have one question that it is the client has given us the list of exempted vehicles also. वो उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे, जो बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसमें ही एग्जेम्पशंस होते हैं। Okay. सो 4 एग्जेम्पशंस थे उसमें, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ठीक है, 5 समझ लो। सो 4 डिफाइंड थे, एक था एज एनी डिफाइंड बाय द लॉ इन द फ्यूचर। सो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ठीक है, एनी स्पेशल डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड आर्म्ड फोर्सेस, ये 4 उसमें डिफाइंड थे। और एक होता है अदर्स। अदर्स मीन्स अगर फ्यूचर में लॉ ने को डिफाइन कर दिया तो ये एग्जेम्पशंस थे। हाँ, और एक और चीज हमने करी थी कि जो हमने सेंसर्स लगाए थे उस सेंसर्स में सारी एग्जेम्पशंस को हमने हटा दिया था। तो जो नंबर्स हमने कंप्यूट कर थे व्हीकल्स के, अगर उसमें हमें कोई ये मूवमेंट दिखा, बिकॉज कैसे होता है, एम्बुलेंस के अलग नंबर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड्स के अलग नंबर होते हैं, ठीक है, ये आर्म फोर्सेस के व्हीकल्स के अलग नंबर्स होते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनके अलग नंबर्स होते हैं। तो वो सेंसर उसको रीड करता है कि ये कौन से कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स हैं, तो वो हमने वहां पे भी हटवा दिए थे, मतलब एक्सक्लूड करा दिए थे, बिकॉज हमें इनका रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो इनको हम कंप्यूटेशन में, डिमांड कैलकुलेशन में इंक्लूड भी नहीं करें। So that's why What was the percentage of those exempted vehicles were coming? मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट मुझे जहां तक याद है इट वाज समवेयर बिटवीन 1 to 1.5% के आसपास। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1.3 1.4 के रफली आसपास, बट 1 to 2% के बीच में था। दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट। देखो, आर्म फोर्सेस उसमें 0 था, कोई आर्म फोर्सेस का मूवमेंट हुआ नहीं था, बिकॉज ये सिटीज के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस था नहीं उसमें। ठीक है,
most of these would be fire brigades and ambulance, वो भी बहुत कम, because काफी long distances generally आप अगर उस side of the city में issue है तो generally वहां से आएगा, इस side of the issue में generally यहाँ से आता है. जो मेजरली मैंने देखा था, मुझे याद है, वो आपकी VIP है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मूवमेंट होती है, वो थे. हाँ जी, एनी अदर डाउट इन दिस? ठीक है. सो नाउ सैलरी हो गया. ठीक है, पर मंथ सैलरी आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, so let's assume from an Indian context perspective, let's assume 10,000 INR. ठीक है, सो टोटल पर मंथ कितना हो गया? और पर एनम कितना हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? सर इसमें जो हम लोग एम्बुलेंस के लिए अलग से जैसे सर्विस दे रहे हैं या उसके लिए दे रहे हैं, तो उसमें चार्जेस उनसे तो लेंगे ही ना हम लोग, जो टोल के चार्जेस हैं? किससे लेंगे? किससे मतलब जैसे लेंगे? सर, तो मतलब वो चार्जेस एग्जेम्प्टेड होंगे, मतलब कोई चार्ज नहीं पड़ेगा उनको? अरे अगर कोई एम्बुलेंस उस टोल से क्रॉस करे तो उस एम्बुलेंस को टोल फीस नहीं पे करनी, दैट इज व्हाट इट मींस. ये उस ओके कंट्री का ओके. लॉ बोल रहा है, हमारे हाथ में नहीं है ये. अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉज वो डिसाइड होगा. डिसाइड हुआ हुआ है वो ऑलरेडी, वो जो गवर्नमेंट ने बिडिंग ओपन करी है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि आप इन इन लोगों से रेवेन्यू चार्ज, इन लोगों से टोल फेयर चार्ज नहीं करोगे. ठीक है. We are not including the toll in charge people, like the head or something. और आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, सो कुड यू रिपीट दैट? Like there is also a toll in charge for the toll booth. टोल इन चार्ज That we are calculating the number of आते हैं आते employees. हैं आते हैं आते हैं. अभी अभी तो मैं सिर्फ देव आई थिंक, सो मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको बूथ ऑपरेटर बोल देता हूँ. इनके लिए कोई टेक्निकल टर्म से मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. तो मैं भी इसको बूथ ऑपरेटर कर देता हूँ. ऐसे आप अपना सारा लेबर कॉस्ट निकाल लोगे तो अभी जैसे सुपरवाइजर जो पावर बोल रही है, सो व्हाट दे डेट, आपको 3 सुपरवाइजर की जरूरत है, क्यों 3? हर शिफ्ट में एक सुपरवाइजर है. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम उनकी कॉस्ट, उनकी सैलरी 12,000 रुपीज है. ठीक है, तो ऐसे आपका टोटल कॉस्ट, अगेन आप जितने लोग इसमें डालने आप डाल सकते हैं, करेक्ट. आपका ये लेबर कॉस्ट आ जाएगा. यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट इन द लेबर कॉस्ट? दिस इज रेकरिंग, एवरी ईयर आपको कॉस्ट लगेगा इतना. ठीक है,
इन केस नो डाउट फिर हमने कंप्यूट किया था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ठीक है, तो इसमें जो है प्राइमरी 3 कैटेगरीज में कंजम्पशन कैलकुलेट किया गया था। एक था बूथ्स, एक था स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर बट hypothetically let's assume there are 50 street lights on each side, so 100 street lights in total. हमारे बूथ कितने थे? 54। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है? बूथ 18 थे। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो ये सब मुझे कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज मेरे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। अगर ये ऐसे टोल्ड ये सब कोई रनिंग कंपनी होती तो ये मैं सब नहीं करता, बहुत आसान हो जाता गेम हमारे लिए। उसकी कंजम्पशन, कॉस्ट, रेवेन्यू सब पैटर्न हमें दिखता और हम उससे यूज करके आगे बढ़ते। सो देन यहाँ पे जैसे बूथ है, सो बिकॉज ये बूथ विल ऑपरेट एट 24 आवर्स, करेक्ट? तो इस बूथ में क्या क्या लगा होगा वो क्लियरली डिफाइंड था। सो सपोज इज वन लाइट, वन फैन, ठीक है ना। अब अगर उस लाइट को 1 आवर में यूज करता हूं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है ये बहुत क्लियरली आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, करेक्ट? वो गिवन होता है उसमें। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स मुझे ये पता लग जाएगा कि इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल। इसमें आपका उनका जो this there was very similar to a computer screen. It was not exactly computer, but there was a screen that was put up in each booth, ठीक है। सो ऐसे इक्विपमेंट्स थे वहां पे, ठीक है। सो वो सबको मैं नहीं लिख रहा हूँ बट वो सब इक्विपमेंट्स भी आएंगे। लेट्स अज्यूम पर डे का मैक्सिमम 10 यूनिट्स आता है, 10 यूनिट आता है। सो जो टोटल मेरा कंजम्पशन है दिस इनटू दिस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है लेट्स जो 1 रुपी है पर यूनिट। सो माय टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग कम्स आउट टू बी दिस इनटू दिस, ये पर डे है, इनटू लेट्स मैं 365 करता हूँ, मेरी साल की कॉस्ट आ गई इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसी मैं सारी स्ट्रीट लाइट्स की भी ऐसे निकाल लूंगा एंड सो, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो लाइन में कितना कंजप्शन हो रहा है पर यूनिट?
Last time, any questions on this electricity consumption? एक मिनट है 65,000 कैसे है? तो मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज कर दिया बिकॉज वो जो 180 कैलकुलेशन था 180 पर डे था and this will operate 24/7 so this will be the costing. Is that clear, Parul? 180 days कैसे? 180 days नहीं है 180 कॉस्ट है पर डे की ओके 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 इनटू 365 ठीक है। into 365 के। स्ट्रीट लाइट का कंजम्पशन कॉस्ट कितना होगा पर यूनिट कंजम्पशन? वो सब तो मिल जाता है ना यार जो सो फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट हैज डिफाइंड कि इस टोल पे ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई होगी तो उस स्ट्रीट लाइट की जो क्वालिटी होती है या मेक होता है उसके बाद वो कितने यूनिट का कंजम्पशन देता है पर आवर वो तो क्लियर डिफाइंड होता है ना उसमें कितना वो हमारा काम तो ना निकालना वो तो डिफाइंड होता है। आप आज कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हैं उस पर लिखा होता है ना उसका कंजम्पशन ये रेट क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो जो Okay, भी sir. होगा सो लेट्स अज्यूम दैट इज 2 यूनिट 1 यूनिट व्हाटएवर बट सिर्फ इतना है कि हमने जो स्ट्रीट लाइट से कंप्यूटेशन करी थी उसमें हमने 24 आवर्स का नहीं करा था बिकॉज अगेन वहां पे नॉर्म्स डिफाइन होते हैं कि इतने बजे आपकी स्ट्रीट लाइट ऑन होगी इतने बजे स्ट्रीट लाइट ऑफ होगी तो जितने आवर्स है उतने आवर्स का कंप्यूटेशन आप करते हैं। जैसे बूथ है बूथ में तो हमने 24 आवर्स का किया ना करेंट कोई फुल डे ऑपरेट करेगा वो और स्ट्रीट लाइट आपके लेट्स अज्यूम अगर आपके 10 आवर्स ऑपरेट करेंगे तो 10 आवर्स का हमने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लिया था बट एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हो गई। So there are more factors to be accounted for this overhead calculation, what we are doing. There are some buildings in which these workforce will have to stay and all that. Normally it happens in the admin building is there for this tools and all that. There was no admin building so the So no in India it is there. I'm not sure कि कहाँ पर है but in this toll जो so there was other add-on cost also जब मैं उसमें आऊँगा but there was no accommodation given to any of these laborers if that is your question कि कोई accommodation in laborers को मिलती थी क्या the answer to that is no. There is no accommodation. Is also some security in charge is also Add associated. तो वो सब इसमें ऐड कर मतलब उसमें मैंने ये सब के अंदर ही सुपरवाइजर सिक्योरिटी के अंदर आप और रोज ऐड करते जाओ इसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप इसमें ऐड करते जाओ। I'm just trying to what I'm trying to do Deepak I'm not trying to so for example मैंने आपको एक लेबर कंप्यूटेशन सिखा दी अब वो लेबर में आप 50 लेबर करो 2 लेबर करो मैं उनको हर अलग अलग तरीके में से जाके टाइम I'm trying to save time on that and trying to move to a more other different types of computation so इस वजह से आपने सिक्योरिटी बोला था एक सिक्योरिटी था वो No, in that case, because in any of this, from any of other, you can say that from toll reference, we can take these overheads in the thumb rule that whatever be the operational cost, the overheads are, it always happens like that. वैसे ले लो अगर आपको वैसे लेना है तो अगर आप कोई हिस्टोरिकल टोल रोड को लेके उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट करना चाहते हैं वैसे कर लो सो देन वो स्टार्टअप वो देन यू ट्राइंग टू रेफरेंस टू सम हिस्टोरिकल नंबर तो वो आपका एज गुड एज ये आप रनिंग कंपनी का कर रहे हो आप रनिंग कंपनी का खुद का नंबर देखो या किसी कंप्यूटर का नंबर देखो स्टिल इट गिव्स यू सेम नंबर कि आपने अपने कंप्यूटेशन नहीं किया और एक हिस्टोरिकल एवरेज को देखा वो भी कर सकते हो वो भी किया जाता है। But in this deal, we, as I told you, because there was a client who was setting first time anything in that country, so he also is not aware of a lot of nuances. ठीक है, and we wanted to compute everything. दूसरा ये bidding है. Try and understand bidding में ये होता है कि आप किसी historical numbers को मतलब आप किसी कंप्यूटर के एवरेज को देख के जनरली अगर करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज्यादा लाइकली है कि आप वही बिड को रेप्लिकेट कर दोगे जो बिड वो करने वाला है।
I'm just trying to tell you कि इसमें कोई yes, no, right and wrong नहीं है. It's a call that a company and a company means investment banker and the client has to take at that time. Because जितना आप खुद कैलकुलेशन करोगे उतना ही कॉस्टली मॉडल हो जाता है, करेक्ट. क्लाइंट को उतनी कॉस्ट हम ज्यादा चार्ज करेंगे बिकॉज वी आर पुटिंग आवर ह्यूमन रिसोर्स एंड आवर बैंडविड्थ, करेक्ट, टू डू दिस ऑल कैलकुलेशंस. ऑफ कोर्स वो कॉल ली जाती है उस वक्त. पर अगर मैं किसी और का नंबर देख के बता रहा हूँ तो पहले काम बहुत आसान हो जाएगा. अब वो नंबर उस कंपनी का खुद का पुराना नंबर हो या उसका सिमिलर कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग करवाई, lot of few smaller transaction. ये ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी थी, their stakes were very high. ठीक है. So जो छोटी ट्रांजेक्शंस होती हैं जनरली, so we did something for DLF last couple of years. So DLF वगैरह के बहुत छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है. So उसमें जनरली हम ये कंप्यूटिंग नहीं करते. DLF मुझको बोलता है कि यार मेरे को पर फ्लैट या पर किलोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इतना है, एंड वी मूव we take that as the base and move on. ठीक है. So अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग करा जाता है, बट अगर ये सब हटाना है तो हटा सकते हैं. I'm fine with to skip all these calculations and we can use the assumption कि okay, because how much it will account for out of 10 crores, how much it accounts for the operating, how much percentage will this accommodate in terms of the operating cost. total 10 crores operating cost. There is no need to get into further bifurcation, correct. हमने उस further bifurcation की जरूरत क्या? मैं आपको सिखा रहा हूँ 10 करोड़ आया कहाँ से. मैं आपको सिखा रहा हूँ 10 करोड़ out of 10 crores में इसका ये जो कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, the workforce salaries and all that, how much is this total value? How does it matter? Does it matter? ये 10 करोड़ का जो ब्रेकअप है वो 2 करोड़ प्लस 8 करोड़ है कि 8 करोड़ प्लस 2 करोड़ है? How does it matter? No. I'm not saying that. I'm saying that how much we have. Is it a substantial value to accommodate in depth? Because there are other operating costs like maintenance of this roads and all that. करूँगा मैं सब ऐड. अभी मैंने कहाँ मना किया? मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ लेबर के अंदर. अब आप अगर एक और लेबर है, लेट्स से सपोज आई नीड अ सिक्योरिटी गार्ड. अब मैं बोल रहा हूँ कि उसकी कंप्यूटेशन आप खुद कर सकते हो ना, जैसे मैंने सिखाया. अब इसके बेसिस पे इफ यू हैव मोर लेबर और लेस लेबर, कांट वी कंप्यूट द कॉस्टिंग फॉर द लेबर और द ह्यूमन रिसोर्स? दैट्स माय पॉइंट. आई एग्री विद यू. मेंटेनेंस कॉस्ट अभी ऐड कराऊंगा. यू विल सी अदर कॉस्टिंग आल्सो जो भी ऐड कराऊंगा. सो आई एम ट्राइंग टू गिव इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. आज हम एक ही सेगमेंट में उसको बहुत सारा कैलकुलेशन करने की. Okay, but my point is that कि उस टोल बूथ का वर्कफोर्स का हायरार्की हमने डिफाइन किया है क्या? या हमारे पास यही हायरार्की है जो क्लाइंट ने बोला कि एक टोल ऑपरेटर होगा जो जिसका नाम मुझे याद नहीं है. देयर वाज वन टाइटल और डेजिग्नेशन दे टोल्ड इज बीइंग यूज्ड इन दैट सेगमेंट, एंड वन है सुपरवाइजर. दैट्स इट. यू डोंट नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सुपरवाइजर के ऊपर एक बॉस, वो कोई नहीं है. एक सुपरवाइजर एक शिफ्ट में. सो 3 शिफ्ट अगर होंगी तो एक सुपरवाइजर होगा और आपके बूथ ऑपरेटर्स होंगे. दैट्स इट. फ्रॉम ए ह्यूमन रिसोर्स, फ्रॉम ए लेबर पर्सपेक्टिव. हाँ, उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसमें सिक्योरिटी वैन्स हैं, काफी और भी चीजें थी जो मैं अभी आपको बताऊंगा. बट आई एम सेइंग फ्रॉम ए ह्यूमन रिसोर्स, फ्रॉम ए लेबर पर्सपेक्टिव, अगर मुझे व्हाट आई वांटेड टू से इज दिस, लेट्स अज्यूम मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो इसकी कंप्यूटेशन अब कोई डिफरेंट है क्या जो कंप्यूटेशन मैंने आपको ऊपर सिखाई है? No. I'm saying that is it defined by the client or we have to go for that and get it approved from the client? No, so इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं. So what we did, for example, जैसे स्ट्रीट लाइट का है, स्ट्रीट लाइट का हमने क्लाइंट से नहीं पूछा बिकॉज जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ही लिखा है कि इतने लेंथ के टोल बनाने के लिए आपको इतनी स्ट्रीट लाइट्स लगानी पड़ेगी, नॉट लेस नॉट मोर. सो वो हमें वहां से मिल गया. लेट्स से सिक्योरिटी गार्ड्स है. अब जैसे मैंने आपको जो बूथ का एग्जांपल दिया, बूथ का भी उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि बिकॉज इट्स एन 8 लेन बूथ, sorry, it's an 8 lane one side, so you have to construct 8+1 on one side. So जो मुझे इंफॉर्मेशन वहां से मिल रही है गवर्नमेंट, उसमें मैं क्लाइंट को जाके बॉदर नहीं करूंगा. ठीक है. जो मुझे इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिल रही है, एंड देयर इज समथिंग दैट
that as a financial expert मुझसे expect नहीं किया जाता, correct? अब कितने security guard होंगे, it's not a financial call. It's a call the company has to take in terms of how they want to run the store. तो मैं उनसे जाके पूछूंगा. So that is the way it will work, correct? और जहाँ पे client बोलता है कि मुझे भी नहीं आइडिया है, then मैं जाके जैसे हमने vehicles का सर्वे किया, we developed our methodology, correct? जहाँ पे information उसमें contract में भी available नहीं थी, government के contract में भी available नहीं थी, client भी कहता है यार मुझे भी नहीं पता है. So then the client expects me कि you go and get that number for me. So for example, security guard. If I remember correctly, security guard नहीं लिखा हुआ था कितना number of security guard. We moved ahead with that. दीपक और कुछ क्वेश्चन है इसमें? No, that is the only question, that if it is given, then it's okay by the client. Otherwise, we have to go for either a peer group कि क्या हो रहा है, or a thumb from the existing tools and all that. ठीक है. Now, so then the next component was maintenance. ठीक है. ठीक है. So maintenance is again आपको डेप्रिसिएशन 10% दे रखा है. ठीक है. ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आया? How do we decide a depreciation rate to be charged? अगर आपके पास कोई एसेट है, आप कैसे डिसाइड करते हो उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? It is considering this 2024 is the end of that asset. The life of the asset will end in 2024. Okay. ठीक है. और कोई लॉजिक? इंडिया में इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन शेड्यूल में गिवन होता है कि कौन सी एसेट में कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा. करेक्ट. और रेट भी गिवन होता है और एसेट कैटेगरी भी गिवन होती है. यस सर. ठीक है. तो सेम ही यहाँ पे लगाया गया है. क्यों? उसका रीजन बता देता हूँ. बिकॉज मैं जो कंप्यूटेशन कर रहा हूँ ये प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ कि इस बिजनेस को अगर हमने स्टार्ट किया तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, एंड वो प्रॉफिट के फिगर पे आने के लिए मुझे टैक्स पे आउट करना पड़ेगा. तो जितना टैक्स कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन की, एटलीस्ट मुझे वो पेज बनाना पड़ेगा फॉर माय कैलकुलेशन फॉर शेयर होल्डर्स टू डिसाइड वेदर वी शुड और शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस. ठीक है. सो ये जो 10% लिया है ये इस टाइप ऑफ एसेट क्लासेस एंड उस कंट्री के लॉ का जो depreciation rate है, that is what we have taken as 10%. कोई डाउट यहाँ तक? सर ऑपरेशनल कॉस्ट का जो इंक्रीमेंट है 5%. आते हैं श्रीकांत, उस पर बाद में आते हैं. पहले हमारे 10 करोड़ से कभी कंप्लीट नहीं हुआ है. 5% पे आऊंगा. मैं अभी इसी पे हूँ. मैं भी आपको यही सिखा रहा हूँ. इसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे गया हूँ. आई विल कम बैक टू दिस और फिर बाद में ये बताऊंगा. चलिए. हाँ जी. मेंटेनेंस कॉस्ट. So fixed assets would include the infra only, no? The infrastructure of both. Correct. Not Correct. Not
बिकॉज और कुछ फिक्स कैपेक्स हमारा हुआ नहीं है इस नहीं है, सिनेरियो कोई में। कैपेक्स नहीं, कोई कैपेक्स नहीं हुआ। I have one हाँ जी, question in this. बोल। 2024, whatever be the income tax says that this is the total depreciation percentage it is. Are they confined that to 2024 में वो उसका life end हो रहा है करके? Because नहीं, beyond 2024 it will not go. One thing, income tax department doesn't know how much life the asset will have. कितना आप लेके जाना चाह रहे हो? Will it not be good that we should compute in both aspects, the land of the law for tax part as well as the end life of this asset? नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज जो लाइफ है, सो ये बीओटी मॉडल है। इट्स नॉट द लाइफ विल कम एट दिस एसेट का लाइफ विल नॉट कम एट द एंड इन 2024। आई हैव टू ट्रांसफर दिस एसेट टू समबडी। For Okay, for the modeling, from the I'm modeling selling the, perspective, I'm you selling will the not asset. get. I will get, I'm selling the asset, उसका पैसा मुझे मिल रहा है ना, तो इनकम टैक्स मुझे बेनिफिट क्यों देगा? अंडर बीओटी मॉडल, बीट इट इंडिया और बीट एनी अदर कंट्री, यू डू नॉट टेक द डेप्रिसिएशन टिल यू No, no, ट्रांसफर द I'm not एसेट। saying the benefit from income tax. I'm saying, uh, okay, अब आपने you introduce one more aspect that आएगा 2024 ये। में I'm selling that asset. नो, Are नो, आई you एम नॉट getting सेलिंग। any money out of that? नहीं दीपक, देखो 24 में ये एसेट मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। व्हाट डू मैं ट्रांसफर इन लीगल टर्म, इसको मैं सेल कर रहा हूँ फॉर ए वैल्यू ऑफ 1 रुपी। टेक्निकली इट्स ट्रांसफर, बट लीगल टर्म्स में इसको ट्रांसफर को सेल दिखाया जाता है 1 रुपी की वैल्यू पे। ठीक है, तो ये हम 1 This is a रुपी को इग्नोर notional कर value. सकते। That's okay. हाँ, इसको नोशनल वैल्यू से लीगल वैल्यूज को फिलफिल करना, बिकॉज यू नीड टू शो सम एक्सचेंज ऑफ फॉर यू टू ट्रांसफर द एसेट। ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसफर ले रहा हूँ, विच इज फ्री मान के चलते हैं। बट नॉट टेक्निकली दिस इज नॉट फ्री, बिकॉज अगर ये जो लैंड है जिस पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये लैंड मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैंड है। आइडियली मुझे इस पर रेंट पे करना चाहिए, जो मैं पे नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट पेइंग दिस रेंट। ठीक है, सो मैं रेंट पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, विच मीन्स इसके अगेंस्ट जो मुझे बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा ना, मैं दोनों साइड कंसिडर नहीं करूंगा ना, बेनिफिट कंसिडर करूंगा ना एक्सपेंस कंसिडर करूंगा। दैट इज व्हाट बोथ फ्रॉम एन इनकम टैक्स एंड अ मैनेजमेंट एनालिसिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू सी, कि अगर मैं जो यहाँ पे खर्चा कर नहीं रहा हूं तो उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट है वो भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं दोनों को इग्नोर कर रहा हूं इन दिस एनालिसिस, बी इनकम टैक्स बी। अदरवाइज मुझे इतने सालों के लिए इस लैंड पे रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ तो रेंट पे करना पड़ेगा जो मेरे को फ्री है अभी। आई एम नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी टू द गवर्नमेंट फॉर यूजिंग दिस लैंड फॉर सो मेनी ईयर्स। That is okay. With the depreciation in income tax, will the value of that asset be zero No, it will not for, be zero. from clientele side? No, it will not be zero. Okay. Because asset what you are creating is end to end road with a toll in it. करेक्ट, ठीक है, तो उसमें लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता है। करेक्ट, पर वो लैंड एसेट मेरी क्या नहीं है है तो आपका? इसलिए वो लैंड मेरी नहीं है, एसेट इसलिए क्या मैं है? उस पर कोई बेनिफिट नहीं। वो एसेट जो उस पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन होगा वो मेरा है, वो जो लैंड पे होगा वो मेरा नहीं है, उस पर जो टूल में बनाऊंगा वो मेरा एसेट है। Whatever you are putting to means creating this toll, you the value of that you are depreciating. That's the only thing. यस यस यस, नॉट द लैंड।
Anything else? Okay. So आपके जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पे मेंटेनेंस, मिनिमम मेंटेनेंस डिफाइन होती है कि आपको स्ट्रीट लाइट्स या अपने टोल की इस चीज को मेंटेन करना है, ठीक है, एंड देन मेंटेनेंस शुड इंश्योर दीज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक टोल बनाया और उस पे लेट्स अज्यूम स्ट्रीट लाइट खराब हो गई एंड यू डोंट गेट दिस रिपेयर्ड, और लेट्स अज्यूम आपके उस ब्रिज पे लेट्स अज्यूम कोई डैमेज हो रहा है या कुछ इरोजन हो रहा है, आप उसको मेंटेन नहीं करो. सो एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन होते हैं उसमें, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी वर सिमिलर व्हेन वी वर डूइंग दिस फॉर DMR दिल्ली मेट्रो, सो वहां पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट था, है इनफैक्ट. सो वहां पे भी आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम डिफाइन होते हैं कि उसमें आपको उतना मेंटेन करना पड़ता है till that you're operating that. Okay. So One more thing, please, sir. Who will provide you the lights, the source of this light? Government. source of this light means electricity supply. Generate आप तो करेंगे, हाँ, supply. नहीं, we are not generating. We will consume. इसलिए मुझे पे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट में लिया. ठीक है. And at what voltage they are giving? Do we have to step down that and to? वो रेट डिफाइंड है ना यहाँ पे. वो रेट मैंने डिफाइन किया था ना. No. I'm not saying about the rate. I'm saying that because normally in the highways, there's a high voltage lines are there, and government says that okay, this line is there. Step down to the consumption voltage and use it. Correct. This happens normally because वैसा ही है. उधर तो उसके लिए जो आपको you have to step down that voltage, you require some electrical equipments. Step down to the voltage. See, there is already जो हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं वो ऑलरेडी वहां पे स्प्रेड आउट है, ठीक है. और उसके ऊपर जो मेरे को वहां से अपने जो इंडिविजुअल सेटअप्स में लाने के लिए है, वो हमने सारा ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लेके चले हैं. जो ये जो हम टोल की बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसमें सब इंक्लूडेड है. ये जो उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगनी है या उसमें जो इक्विपमेंट्स लगने हैं तो ब्रिंग दैट स्टेप डाउन, सो उसमें ही सब इंक्लूडेड है ये केपेक्स में. All the utilities are included. करेक्ट. वो इन्वेस्टमेंट है ना, वो एसेट लग जाएगा वहां पे. ऑपरेटिंग कॉस्ट में तो वो चीज है जो रेकरिंग होने वाली है. ये रेकरिंग नहीं होगी ना, वन टाइम है ना सारा. वो जो इक्विपमेंट्स लगेंगे या जो वायरिंग होगी, दैट इज वन टाइम. सो दैट इज पार्ट ऑफ माय केपेक्स. No, just for that cost, I'm asking that whether those all aspects are being considered in that. या वो वन टाइम जो कॉस्टिंग करा उसमें सब आ गए. यही तो इंजीनियरिंग टीम. सो दैट इज व्हाई we were not able to do this calculation, correct? We have to rely on. तो इंजीनियरिंग टीम ने दिया, वो पूरा एक स्केच बनता है, ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, उसमें क्लियरली एवरी 1 किलोमीटर का एक स्केच होता है कि इस 1 किलोमीटर का स्केच क्या डायमेंशंस है, वहां पे कहाँ पे स्ट्रीट लाइट होगा, कितनी हाइट का होगा, उसमें क्या होगा एग्जैक्टली, वो वायरिंग, वो सब. जैसे आपकी प्रॉपर्टी जो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो इंजीनियरिंग टीम आर एबल टू मैनेज दैट. तो वो सारा आपका जो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग है केपेक्स, उसमें आया हुआ है. एनी कॉस्ट विच इज अ वन टाइम कॉस्ट, वो सब आपकी केपेक्स में, और एनीथिंग विच इज नॉट वन टाइम एंड रेकरिंग, वो आपके ओपेक्स में आएगी. That is the bifurcation from a modeling perspective we need to follow. ठीक है. और then उसके अलावा जो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोगों ने डिफाइन करी थी, एम्बुलेंस, फायर सपोर्ट, ठीक है. सो ये क्या था, एंड देन आपका again I'm missing the name, but technically
there was again a technical name that they were using, but मैं इसको repairs बोल रहा हूँ. So ये vehicle repairs है या vehicle maintenance है. ठीक है. So जैसे ambulance है, so again there would be 2 ambulance always on the standby in the toll road, on the toll road, within the toll, which means अगर ये टोल का एंट्री पॉइंट है या एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, there will always be one ambulance on this side and there would be another ambulance on this side, always on the standby mode. ठीक है. So if something happens within the boundary of this toll, so this ambulance will act. Similarly fire support, ठीक है, and similarly vehicle maintenance. ये फर्स्ट दोनों पहले किसी को डाउट है तो पूछिए. ठीक है. So इसका अगेन देवर डिफाइंड चार्जेस जो जनरली एक एम्बुलेंस को अगर आप 24/7 ऑपरेट कराते हो तो एक वेंडर है, ठीक है. दिस इज नॉट एन एम्बुलेंस दैट दीज पीपल विल परचेज, ठीक है. दिस इज एन एम्बुलेंस व्हिच विल बी गिवन बाय अ वेंडर, और वो वेंडर आपको मंथली कितना बिल करेगा, ईयरली कितना बिल करेगा, वो आपको पता. लेट्स अज्यूम अगर वो 100 रुपीज बिल करता है तो आपकी 2 एम्बुलेंस है तो वो 200 रुपीज कॉस्टिंग आ गई. सिमिलरली लेट्स अज्यूम फायर सपोर्ट आल्सो. कोई डाउट यहाँ तक? ये मेरे एसेट्स नहीं है. आई एम नॉट परचेजिंग एम्बुलेंस, आई मींस द क्लाइंट इज नॉट परचेजिंग एनी ऑफ दीस. ये सब वेंडर सपोर्ट्स है. ये मैंडेटरी है, ठीक है. गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट में है, ये मैंडेटरी आपको इंकर करना पड़ेगा सब कॉस्ट. हाँ जी. एनी डाउट ऑन दिस? देन यू हैव व्हीकल मेंटेनेंस. इसमें हमने कॉस्टिंग 0 करी थी बिकॉज so what arrangement client को मिल गया था इज दिस कि यहाँ पे एक व्हीकल मेंटेनेंस सपोर्ट टीम होगी, यहाँ पे व्हीकल सपोर्टिंग है भी किसी वेंडर की होगी, बट ये जिस भी व्हीकल को रिपेयर करेंगे उसको बिल करेंगे, उसको चार्ज करेंगे. So which means I am not paying anything from them and I'm not getting anything from them. Okay, so if the vehicle maintenance, if there's a breakdown of particular vehicle within the boundary of my toll, so then there would be helpline numbers, and these vehicles will help that owner of that vehicle or the driver of that vehicle, and they will charge whatever is expenses, whatever their fees, service fees is to that vehicle or a driver, and hence we are not required to pay anything. So hence this goes off. तो ये फिर टेक्निकली मैं डिलीट कर रहा हूँ. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सर ये व्हीकल मेंटेनेंस वाला एक बार बताइएगा. जैसे आप दिल्ली में देखा ऑन रोड सपोर्ट नहीं होते, सो एट डिफरेंट पॉइंट्स, स्पेशली ऑन highways, you have your vans or you have your small jeeps. Generally these are your moving garages, correct? So if your vehicle had some issue or it needs some kind of a repair, so generally these people will come to your it reaches that point where your vehicle has breakdown, so वहाँ पे आकर रिपेयर करते हैं. ये वो सपोर्ट है, बट ये लोग मुझसे चार्ज नहीं करेंगे. मुझसे मींस आई एम अ क्लाइंट, मुझे चार्ज नहीं करेंगे, व्हीकल ड्राइवर को चार्ज करेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम देम, पेइंग टू देम. ओके सर, ओके. मतलब हमें हमारा इसमें कोई खर्चा नहीं है. नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं है. ओके, क्योंकि वो व्हीकल को ही चार्ज करेंगे. ओके.
Anything else? ठीक है. So anything else that you probably can think of should be part of the maintenance? मैंने broad categories आपको बताया जो हमने compute करा था. जो minor categories है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. ठीक है. Broad categories is what I've explained to you. So anything that you believe is also a major piece that should be looked at from a maintenance cost or from an operating cost perspective. ठीक है. So coming to this 5%, ठीक है. So ये 5% हमने typically जो भी वहाँ पे average inflation था उस पे 100 basis points add किया हुआ है. That is the way we have computed this 5%. This is purely based on some logical assumption. So अगर मेरा average inflation 4% है तो मैंने उस पे 100 bps ऐड किया हुआ है. तो 100 bps is 1%, so उससे 5% आया हुआ है. Again, there's a lot of subjectivity and a lot of probably of course there's a lot of subjectivity कि आप 1% क्यों ऐड कर रहे हो, 3% क्यों नहीं कर रहे, 0.5% क्यों नहीं कर रहे. It's just a buffer that we wanted to keep. That's it. इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है इस 100 basis points पे. We originally wanted to keep at 4% जो average inflation था, but client wanted us to keep a buffer of 100 basis points, so we decided okay, we'll go with this 100 basis points का buffer. Because you never know how these costs might evolve in the future. That's why you want to keep some buffer to this. सर ये इन्फ्लेशन रेट 4% है तो फिर ये एक्स्ट्रा 1% क्यों ऐड किया जा रहा है? कंजर्वेटिव रखने के लिए. कंजर्वेटिव रखने के लिए. तुम कहीं पर ट्रैवल करते हो, वहां पे तुम्हारे को खर्चा है 100 रुपीज का. यू कैरी 100 रुपीज इन ए पॉकेट और यू ट्राई एंड कैरी मोर. एट मोस्ट इतना जा सकता है, इन्होंने ये एजम्पशन लगाया. फजलूर, अगर आप एक ट्रैवल कर रहे हो एक कंट्री में, you're going to a other country for travel for let's assume a month, and you know the total cost of your travel for or your stay for that month in that country is 100 rupees or $100. Will you carry $100 or will you carry a little more? It will be more, sir. क्यों more क्यों करोगे? At most हम कॉस्ट लेकर के चलेंगे कि मुझे इससे ज्यादा हो सकता है. वो यहाँ पे भी कर रहे हैं ना. ये सब इमरजेंसी या सब अनफोर्सिन सिनेरियोज होते हैं जिसके लिए आप कॉस्टिंग थोड़ा सा अपना कंजर्वेटिव साइड पे रखते हो. इसलिए 1% ऐड किया गया उसके ऊपर. Fazlur, is that clear? Yes, sir. Clear. Okay. So, any doubt in this? So this para is also done. कुछ पूछना है तो बताइए, otherwise I will move to the next para. This is done. कुछ पूछना है. 10 crores मैंने आपको बता दिए और ये 5 crores 5% बता दिया.
ये जो जितने भी आउटसोर्स्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, हेलो हेलो Sorry, could you repeat your question? जी, ये जो जितने भी हमारे आउटसोर्स इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे ऑपरेशन के लिए, लाइक द प्रिंटर, कंप्यूटर, तो इन सबको कंपनी आउटसोर्स कर मतलब किसी वेंडर से लेती है, राइट? करेक्ट करेक्ट, ये वेंडर से लेती है, क्यों लेती है वो भी बताता हूँ आपको। जब इस तरह के, दिस इज अगेन व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द क्लाइंट, करेक्ट, कि लेट्स से आपने वहां पे कंप्यूटर लगा दिया। अब 2024 में पारुल आप ये ट्रांसफर करने वाले ना गवर्नमेंट, उस कंप्यूटर का आपका कोई यूज नहीं होगा ना, तो कोई भी इक्विपमेंट आप वहां पे लगा के उसको खरीदना नहीं चाहते, बिकॉज 24 में जब आप ये ट्रांसफर करोगे वो उसका कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, एंड हेंस यू आस्क सम वेंडर टू पुट दोज रिसोर्सेज देयर, सो दैट उस वेंडर को आप जब 24 में, तो वो वेंडर उस इक्विपमेंट को पिक करता है, जनरली पिक भी नहीं करता, वो वेंडर आगे गवर्नमेंट को वो सर्विसेज देना शुरू कर देता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई इक्विपमेंट में नहीं लगा रहा हूँ वहां पे इस तरह का। अच्छा, बट माय क्वेश्चन इज कि जितना भी हमारा ये क्या बोलते हैं डिटेलिंग होती है, तो ये भी एज अ मॉडलिंग टीम हम क्लाइंट को बताएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्या बोलते हैं कंपनीज होंगी जो ये ऑफर करेंगे डिफरेंट प्राइसेस, राइट? करेक्ट, तो हम भी वो दो बेस्ट डील स्ट्रैटेजी, क्लाइंट को बताएंगे। देखो क्लाइंट ने हमें जो कॉस्टिंग दी थी उसमें सभी इक्विपमेंट्स एडेड थे, यानी उसमें क्लाइंट ने बोला हम ये सब खरीदेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन्स, कंप्यूटर्स नहीं होते हैं वो, एक अलग तरह की स्क्रीन्स और स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, वो हम खरीदेंगे। जैसे आपने इंडिया में टोल्स पे देखा, फास्ट टैग एक टेक्नोलॉजी अभी आ गई है इंडिया हाँ में, जी, हाँ जी, यस यस। स्पेशली इनटू दिस पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो ऐसी ही वहां पे कुछ टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, जो इससे तो डिफरेंट है, ठीक है। सो बट वो सारी टेक्नोलॉजी वो एक वेंडर मुझे दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। सो ओरिजिनली जो अभी आप देखोगे आगे आगे हम एक फ्यूल स्टेशन की भी बात करेंगे, तो एक फ्यूल स्टेशन की भी हमने बात करी थी क्लाइंट से। सो क्लाइंट ने जो ओरिजिनल हमें प्रपोजल दिया था, उसमें क्लाइंट ने बोला कि मैं ये स्क्रीन खरीदूंगा, ये टेक्नोलॉजी मैं खरीदूंगा, पेटेंट करा लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे काफी सारे। व्हाट, जब हमने उसको मॉडल करना शुरू किया तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा दिख रही थी हमारे को, और फिर एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये हमने क्लाइंट को वापस प्रपोज किया कि आप ये सब इक्विपमेंट्स मत खरीदो, ये सब इक्विपमेंट्स एक वेंडर को खरीदने दो, और उसको हम एक मंथली रेंट या लीज पे लेते हैं, सो दैट हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए, एंड टू विच क्लाइंट एग्रीड। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम अ फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव योर क्वेश्चन वाज कि ये किसको करना है, ये क्लाइंट को करना है कि या हमें फाइनेंशियल मॉडल्स एक्सपेक्ट किया जाता है। दिस इज डन बाय द क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ कि इसको क्या चाहिए, बट अगर आप कहीं पे क्लाइंट के लिए आरओआई को इंक्रीज कर सकते हो, आरओआई इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, आप रेवेन्यू को इंक्रीज करो या कॉस्ट को कम करो, इनमें से आप कोई भी चीज अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, तो वो एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइंट को प्रपोज करना। हाँ, हो सकता है क्लाइंट एग्री ना करे, तो ठीक है, दैट्स समथिंग दैट probably is left to the discretion of the client, but आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है प्रपोजल। जैसे हमने एक और प्रपोजल दिया था बट वो रिजेक्ट हो गया, कि ये जो है हम इसमें एक फ्यूल स्टेशन, मूविंग फ्यूल स्टेशन बोलते हैं वहां पे इसको। सो व्हाट डज इट मीन, जैसे अच्छा बिफोर आई गो टू दैट पारुल, ये does this answer your question? या मतलब वही मेरा कंसर्न था कि जो डील्स हैं क्लाइंट के लिए वो एज अ टीम हम प्रपोज करेंगे और द क्लाइंट विल हिमसेल्फ लुक आउट। देखो मैं बहुत सिंपल सा बाइफिकेशन रखता हूँ जो हम लोग थंब रूल फॉलो करते हैं। जो फाइनेंशियल रिलेटेड एक्सपर्टीज होती है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है क्लाइंट की हम लेके आएंगे ऑन द टेबल। जो बिजनेस की टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है उस बिजनेस की, जो जिस इंडस्ट्री में या जिस सेगमेंट में हम डील कर रहे हैं, वो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है, बिकॉज वी विल नॉट बी एक्सपर्ट्स इनटू इंजीनियरिंग, इनटू कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे चलाते हैं वो क्लाइंट लेके आते हैं, एंड देन
we try and club that with our financial expertise to see कि अच्छा यार ये does this costing make sense or not, looking at the bigger scheme of world from a financial perspective. So that is why you generally try and work together in most of those gray elements. Okay, got it. Okay. So एक ऐसे बहुत सारी चीजें होती है क्लाइंट रिजेक्ट भी कर देते हैं। जैसे हमने जैसे यहाँ पे ये जो एम्बुलेंस व्हीकल मेंटेनेंस की बात की, यहाँ पे हमने एक मूविंग फ्यूल स्टेशन की बात करी थी। So what does this mean? जैसे कुछ कंट्रीज में कैसे होता है कि जैसे आपके जैसे इंडिया में है, इंडिया में आपके जो फ्यूल स्टेशन होते हैं वो मूविंग नहीं है, वो एक ही जगह फिक्स्ड है, करेक्ट? अगर आपको फ्यूल चाहिए तो आपको वहां मूव करना पड़ेगा, व्हिच मींस यू नीड टू रीच टू द फ्यूल स्टेशन, ठीक है? बट at specific points what I've seen, there is a moving fuel station, ठीक है? It's like a big truck, so it keeps on moving and then you give them a call कि मेरी कार यहाँ ब्रेक डाउन है या मुझे यहाँ फ्यूल चाहिए, they come to your place, ठीक है? सो ये हमने प्रपोज किया था, बट देन जो जोग्राफिकल ब्लूप्रिंट हमें मिला था क्लाइंट से, उसमें क्लाइंट का ये व्यू था कि इस टोल के यहाँ कहीं एंट्री के पास इधर और दोनों साइड इधर, मतलब दोनों एंट्री पॉइंट्स के पास ही फ्यूल स्टेशन है. So it's very unlikely कि there's another costing that we need to incur by putting this. So then makes sense, correct? Then this was rejected. This idea was rejected because most of the vehicles अगर दोनों entry point के पास पे आपको fuel stations हैं, so most probably the logical sense we try and do, or even if these rare breakdowns happen, then this vehicle maintenance का इतना फ्यूल होता है कि वो इमरजेंसी में आपको इतना फ्यूल दे देंगे कि आप वहां तक एंट्री एग्जिट पॉइंट तक या जो नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन तक पहुंच सकते हैं. कंसीडरिंग दिस, ये जो प्रपोजल हमने दिया था क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया. ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं जो क्लाइंट एक्सेप्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है पारुल? हाँ जी. So last time, any doubt in this para before I move to next? So we were at this para. ये मैंने खत्म कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन पे हमारा बात हो गया, ठीक है. और इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट वो भी डिफाइंड है कि क्या टैक्स रेट मुझे लगेगा जो भी लॉ ऑफ द लैंड है. सो if the law of the land says 30% or 33% or whatever, then I have to pick that rate for the computation. So I think this para should also be good. Any question in this para, the para which is starting with depreciation? तो इस so far what I have not discussed with you, मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ. मैंने आपको ये नहीं बताया इसमें, चलो इसको छोड़ो, बाद में देखते हैं. और मैंने आपको ये नहीं बताया, करेक्ट? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू नंबर्स जो भी येलो में हाईलाइटेड है, जो आपको डाउट हो या मैंने डिस्कस नहीं किया इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी कंप्यूट दिस और हाउ वी कंप्यूट इट इन दैट ट्रांजैक्शन? देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे, जितना भी केस आपको अभी तक दिख रहा है उसमें एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज येलो व्हिच इज 2 डेटा पॉइंट्स. दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग विद यू. एंड टोल फेयर जो 10 गिवन है, मैंने आपको कहा आप एज्यूम करो ये x है एंड देन मूव ऑन. In this modeling procedure, are there any set rules defined or any steps defined? How to begin with? बट मैंने तो मॉडलिंग स्टार्ट ही नहीं करा है पारुल. अभी तो आप देखोगे मैंने एक्सेल में कोई कंप्यूटेशन आपको भी स्टार्ट नहीं कराई मॉडलिंग पर्सपेक्टिव से. ये तो मैं आपको भी सिर्फ सिखा रहा हूँ कि
जो बेस डेटा आपके पास है वो डेटा कैसे आए। आइडियली अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करा देता आपको कि चलो एक तो सब गिवन है स्टार्ट करो, बट वो स्टार्टअप मॉडलिंग नहीं होती ना फिर। सो यस, देयर इज नॉट स्टेप्स, बट यस देयर इज अ फ्रेमवर्क और देयर इज अ ब्रॉड मेथोलॉजीज के अंदर हम मॉडल बनाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम मॉडल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप कहीं पे नोट करके रखो क्वेश्चन को, वैलिड क्वेश्चन, but you will see, we'll answer this when we start modeling around those pieces. I think definitely कल तो आ जाएगा। I think कल नहीं तो at least definitely next to next class में आ जाएगा। हाँ जी, anything else guys? It's very important आप ये जो केस है इसके numbers कैसे आए, क्या लॉजिक है वो आप समझे before we actually start the modeling from a data crunching perspective. Any doubt on this part except which is highlighted in yellow? Go ahead. सर इसमें लिखा है डेट वुड बी रिलीज्ड वन इक्विटी इज एग्जॉस्टेड, तो इसका जो मेजर पार्ट ऑफ डेट है वो हमारा फेज 2 में यूज होगा और कुछ पता पार्ट नहीं। हमारा फेज 1 में यूज होगा। पता नहीं, अभी वो कंप्यूट करेंगे तब पता लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे कि जब वो हम उसको यूज करेंगे तब लेंगे? जिस दिन मैं लोन लूंगा बैंक से उस दिन से मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। अब लोन लेने के बाद मैंने उसको यूज नहीं किया, दैट इज माय प्रॉब्लम, नॉट बैंक्स प्रॉब्लम। जिस दिन से मैंने बैंक से पैसा ले लिया उस दिन से इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा। ओके सर। और बैंक मुझे तब तक लोन नहीं देगा जब तक मैं अपना सारा इक्विटी स्पेंड नहीं करूंगा। So let's assume 100 rupees is my equity, 20 rupees is debt. बैंक has agreed कि अच्छा अगर आप 100 रुपए की इक्विटी लेके आओगे तो मैं 20 रुपए का डेट आपको दे लूंगा। जब तक वो 100 रुपए मैं खर्च नहीं करूंगा बैंक मुझे 20 रुपए का लोन डिस्पर्स नहीं करेगा। देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिस्पर्स एंड सैंक्शन। सैंक्शन होता है अप्रूव, डिस्पर्स होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो वो सैंक्शन कर देगा, डिस्पर्स नहीं करेगा। श्रीकांत, इज दैट क्लियर? तो एक ही बार में हो जाएगा ना सारा लोन? एक ही बार में हो जाएगा मतलब जो भी हमारा क्वांटम ऑफ लोन होगा वो एक ही बार में डिस्पर्स हो जाएगा ना? वो आपको डिसाइड करना है। आपको एक बारी में चाहिए एक बारी में ले लो, जितना लोगे उतना इंटरेस्ट चालू हो जाएगा आपका। ओके सर। सपोज 20 रुपीज में से अगर आपको 20 रुपीज सारा एक साथ चाहिए, आप एक साथ ले लो, आपका इंटरेस्ट 20 रुपीज में डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आपका तो नहीं मुझे 5 रुपीज अभी दे दो, 5 रुपीज अगले क्वार्टर में दे देना या अगले साल दे देना, तो आपका इंटरेस्ट 5 रुपीज पे लगेगा इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर में 10 रुपीज पे लगेगा। वो मॉडलिंग हमें करनी है श्रीकांत। वो क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि इस तरीके का लोन शेड्यूल बनाओ कि उसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम हो जाए। वो हमसे एक्सपेक्ट करेगा, हमें बनाना है, वो करेंगे जब हम आगे पहुंचेंगे। और ऑल्सो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, सो अगेन इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस मॉडलिंग, इट्स सेपरेट लर्निंग। अगर आप बट आपको फिर भी इंटरेस्ट है सो मैं आपको डेट स्ट्रक्चरिंग भी करा सकता हूँ। सो इन ट्रांजेक्शन में हम डेट को भी स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। सो अगर उसको इंटरेस्ट है तो हम उस पर भी आगे बात कर सकते हैं। क्रेडिट स्ट्रक्चरिंग या डेट स्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं, तो वो भी अगर इंटरेस्ट है तो उसको भी कवर कर सकते हैं। हाँ जी, लास्ट टाइम एनी क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट एक्सेप्ट वन विच इज हाइलाइटेड इन येलो लास्ट टाइम? हेलो, हाँ फिर ये थर्ड पैराग्राफ का जो हुआ है कंप्यूटेशन, तो थर्ड पैराग्राफ, ओके। तो ये इसका तो हम लोग के पास कोई बैकअप भी नहीं है, कोई वीडियो लेक्चर भी नहीं है, तो इसके बारे में तो हम लोग जानते भी नहीं है। तुमने क्लास अटेंड करी थी ना फजलूर? बट सर उसमें लेट ज्वाइनिंग के क्लास अटेंड करी थी, हाँ या ना? यस सर। तो उसके बाद अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। अगर आपको कोई पार्ट मिस हुआ है तो मुझे बता दो क्या पार्ट हो, मैं रिपीट कर देता हूँ। हैविंग सेड दिस, जो दीपक ने पहले बोला वो वीडियो का तो मैंने बोला ना पार्क कर दो, आई विल कम बैक टू यू। बट अगर आपका कोई डाउट है कि सर मुझे ये पार्ट नहीं समझ आया, ये डाउट है, ये क्वेरी है, वो मुझसे पूछो, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट बोलना कि इसका हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, इसके लिए हमारे को कुछ बेसिस नहीं है,
थोड़ा हार्श है ना, हमने जब इतना डिटेल में डिस्कस किया है, मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस अगेन टू यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी ऑन दिस। बोलो क्या डाउट है, बोलो फजलुल। I'm more than happy to explain that query के specific portion जो आपको नहीं समझ आया, पूरा नहीं समझ आया, पूरा भी समझा सकता हूँ। वही ऐसा कि थर्ड पैराग्राफ कुछ समझ ही में नहीं आया, क्योंकि मैं थर्सडे को लेट ज्वाइनिंग लगभग अबाउट हाफ एन आवर मेरा छुटा हुआ था, इसी वजह से। तो कहाँ से आपने सुना था बताओ? मुझे याद है हमारी अब डिस्कशन हुई है व्हीकल की कंप्यूटेशन वगैरह पे, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वहां से तो आपने सुना ही था ना। यस सर। जो हमने डिस्कशन करी थी वो आरटीओ वाली, और हमने वो डिस्कशन हाँ करी थी सेंसस हाँ, वाली, सेम वो आपने सेम सुनी? वहीं से तो वही वहीं तो से। है, वहीं से कराया था, और क्या था? आपने उस सेंसस का डिस्कशन सुना था कि वो सर्वे लगा के सेंसस किए थे, और आपने वो भी सुना था कि हमने जो डिस्कशन करी थी कि वहां पे नंबर ऑफ व्हीकल्स को हमने कैसे, नंबर ऑफ व्हीकल्स सॉरी, जो वो सेंसर्स हैं वो उसको ये भी रीड कर लेता है कितने ट्रिप सेम कार के लगता है। आप ही ने क्वेश्चन मुझे पूछा था कि एक कार अगर 2 बार जा रही है तो कैसे पता लगेगा। यस फिर सर, आपने यस सर। मुझसे ये भी पूछा था कि उस सेंसर से कैसे पता लगेगा कितने उसके टायर्स होते हैं। मैंने आपको बोला था वो सेंसर्स केपेबल होते हैं, याद है वो बात हुई थी? यस सर, एक बार के एक्सेल दिखा देना उस चीज का सर, थर्ड पैराग्राफ का। मेरा आप लोगों से एक बहुत स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो आप ये बोलते हैं हमें समझ नहीं आया और मुझे याद नहीं है, मैं दोनों में डिफरेंस है मेरे लिए, और हमें नहीं कराया वो भी डिफरेंट है मेरे लिए। ये तीनों मेरे लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं और डिफरेंट मीनिंग है। सो प्लीज थोड़ा ध्यान से यूज किया करो। याद नहीं कि सर मेरे को किया था, मेरे को समझ आया, बट अब मुझे याद नहीं है क्या किया था, दैट्स ऑल्सो ओके, मैं रिपीट कर सकता हूँ। समझ नहीं आया मीन्स हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया वो मुझे समझ नहीं आया, दैट्स ऑल्सो ओके, मैं रिपीट कर सकता हूँ। और हमें नहीं कराया वो भी ठीक है, बट बी वेरी क्लियर एंड ट्राई नॉट यूज दिस एज सिनोनिम, दैट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। हाँ फजल, इस पार्ट में क्या क्लियर नहीं है तुम्हें? क्लियर सब था, बट याद ही नहीं था कि क्या चीज हाँ हो तो कर। ऐसा बोलना दोस्त, याद नहीं है, आपने जो वर्ड यूज करे वो थोड़े से डिफरेंट मीनिंग हो जाते, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग प्लीज बी केयरफुल कि आप क्या वर्ड्स, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी कोई ऐसा पीस जो याद आपको आ गया और कुछ पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में ये पूछ सकते हो, और मैं रिकॉर्डिंग वाला आई विल कम बैक टू, डोंट वरी, दैट इज समथिंग व्हिच इज पार्ट। फजू इसमें कुछ और डाउट है आपका? हाँ सर, ट्रिप मीन्स क्या हुआ? वन ट्रिप में वही मेरा सेम क्वेश्चन था कि आने जाने का दोनों उसमें रहेगा। वन ट्रिप में आना जाना 2 ट्रिप काउंट होंगे। 2 ट्रिप हो गया वो। हम्म, वन ट्रिप में से या तो आना है या फिर जाना। यस। क्लियर सर। ठीक है, so I take this as closed now, so which means the only part which is left is this part. ठीक है, so yellow के अलावा I take everything is closed. Closed means we've discussed this, and we go to that, get to a start calculation from model perspective. ठीक है, लास्ट टाइम कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो इसमें पूछिए। सर ऐसे वो भी जो मॉर्निंग पीक वाला एक बार वो बताओगे, जो आपने अभी स्लाइड खोली थी, एक्सेल में खोला था। तो इसमें सर ये एक बार बताना है, क्योंकि वेडनेसडे को मैंने अटेंड नहीं करी थी क्लास, ये मॉर्निंग छूट गई थी मेरी, मॉर्निंग नॉन पीक, So मॉर्निंग ये पीक, आफ्टरनून। हाँ,
सो ये क्या है मनमीत, सो ये जैसे ट्रैफिक का जो मूवमेंट होता है रोड पे, वो डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट मूवमेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जनरली आपको डिपेंडिंग ऑन आप which part of the country में हो, बट I'm saying generally most of the metropolitans will have मॉर्निंग में, स्पेशली लॉकडाउन से पहले, करेक्ट, इस पेंडेमिक से पहले जो ऑफिस आवर्स होते हैं जनरली इन इंडिया, द ऑफिस, मोस्ट ऑफ द ऑफिस स्टार्ट्स अराउंड 8:30 और 9 टाइप्स, ठीक है। एंड ऑफिशियल जो फ्रॉम एन एचआर पर्सपेक्टिव जो टाइम है वो 6 PM 7 PM है, करेक्ट। तो जनरली आपको मॉर्निंग में बिटवीन 7 to 10 या बिटवीन 7 to 9 जनरली आपको ट्रैफिक हैवी दिखता है, एंड सिमिलरली इवनिंग में अराउंड 6 to 8 टाइप्स हैवी दिखता है आपको। दोज आर मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस और गोइंग टूवर्ड्स ऑफिस, करेक्ट। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट मतलब किया है कि हाँ, उस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, ज्यादा तो हो सकता है, करेक्ट ट्रिप्स ज्यादा होंगी उसके हिसाब से। करेक्ट। अब जैसे लेट नाइट आवर्स है, लेट नाइट पर ट्रैफिक आपका मूवमेंट कम हो जाएगा, आफ्टरनून में ट्रैफिक मूवमेंट कम हो जाएगा, सो दैट इज व्हाई वो उसको डिफरेंट टाइम जोन में ब्रेक किया। और सर ये रेनी डेज का क्या है, मतलब रेनी डेज में मतलब ट्रैफिक कम हो जाएगा क्योंकि व्हीकल्स कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा वो तो डिपेंड करता है एरिया पे, बट रेनी डे पे आपका ट्रैफिक मूवमेंट डिफरेंट होता है ना वीजा विद नॉर्मल डेज। उसके हिसाब से मतलब ये जो है हम लोग की ट्रिप कैलकुलेट करिए। यस, ओके। ठीक है। सो in case no questions, probably will keep till this point. जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं हम कल स्टार्ट करेंगे, एंड आई थिंक कल वी probably would be in, I think, in a position to start with the calculation as well. So tomorrow please keep your laptops handy with you, in case we reach to that point that we are comfortable to start the calculations. We'll start off that. Excuse me, sir. Yeah, Parul. Kansha here. Sorry, Kansha, go ahead. Sir, for this increase in 5% of the traffic every year, we've computed it or we've actually assumed it? This is my confusion. So this 5% has two components. One is the number that we computed, and the second is an assumption. So ये 5% हमने कैसे compute किया? हमने लास्ट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट 5 साल का या 4 साल का अपने को डेटा है, बट हमने लास्ट कुछ ईयर्स का उस सेगमेंट का इन्फ्लेशन लिया, ठीक है। वो नंबर्स मेरे पास अवेलेबल है कि उस कंट्री में क्या इन्फ्लेशन है ऑन एन एवरेज लास्ट 3-4 साल में। सो लेट्स अज्यूम दैट कम्स आउट टू बी 4%, और उसके ऊपर हमने 1% एक्स्ट्रा ऐड किया। ये जो 1% एक्स्ट्रा, इसका कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशन है कि we wanted to keep the cover or the cushion so that अगर cost थोड़ी बहुत out of control जाती है, we still are able to keep this under our calculation. Akansha, any doubt in this? Akansha? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Okay. ठीक है, चलिए, so we'll connect tomorrow. Okay. And I will speak to Damni for the recording and I will come back to you. Chalo, thanks. Bye.